تلنگانہ ہائی کورٹ نے واضح کیا ہے کہ سرکاری ملازم کے انتقال کے کئی برسوں تک معاشی طور پر مستحکم خاندان ہمدردی کی بنیاد پر تقرر کا اہل نہیں ہو سکتا۔ چیف جسٹس پریش کمار سنگھ اور جسٹس جی ایم محی الدین پر مشتمل بینچ نے ورنگل کی ایک خاتون کی درخواست کو مسترد کر کے یہ فیصلہ سنایا۔ فیصلے میں کہا گیا کہ درخواست گزار نے جن بنیادوں پر ہمدردی تقرر کی مانگ کی ہے وہ ناقابل قبول ہے۔ درخواست گزار جو بے روزگار ہیں، انہوں نے اپنے والد کی موت پر جی ایم ہاسپٹل ورنگل میں تقرر ہمدردی کی درخواست کی تھی۔ 2018 میں والد کا انتقال ہوا جو میل نرسنگ شعبے سے وابستہ تھے۔ خاتون کی درخواست کو حکام نے مسترد کر دیا جس پر وہ 2024 میں ہائی کورٹ سے رجوع ہوئی۔ سنگل جج نے جاریہ سال فروری میں درخواست کو مسترد کر کے کہا کہ فوری معاشی بحران کا سامنا کرنے والے خاندانوں کی فوری مدد کے طور پر ہمدردی کی بنیاد پر تقرر کیا جاتا ہے۔ فاطمہ شیراز لے کر آئے ہیں ہربل ویٹ مینجمنٹ سولوشن، قدرتی جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ سلم ایج باڈی رائٹ اور ٹرمیچور جو بغیر سخت ڈائٹنگ، بغیر سائیڈ ایفیکٹس، صرف قدرتی طریقے سے وزن کم کریں۔ ویٹ مینجمنٹ کو اپنائیں اور خود کو پر اعتماد، ہلکا اور صحت مند محسوس کریں۔ شخصیت کے ساتھ کرو وفا، آ جاؤ صفا۔ شادیوں کا سیزن آ چکا ہے اور صفا گارمنٹس لایا ہے ویڈنگ اسپیشل آفر۔ فلیٹ 40% آف آن ریڈی میڈ شیروانی، بلیزر، جودھ پوری اینڈ انڈو ویسٹرن ڈریسز۔ اسٹارٹنگ رینج صرف 1499 میں۔ فلیٹ 30% آف آن شیروانی، بلیزر، جودھ پوری اینڈ انڈو ویسٹرن فیبرکس۔ فلیٹ 25% آف آن کٹ شیروانی، بلیزر، جودھ پوری اینڈ انڈو ویسٹرن ڈریسز۔ جلدی ہے، کوئی پرابلم نہیں، ارجنٹ سٹیچنگ صرف 8 گھنٹے میں۔ شیروانی، بلیزر، جودھ پوری سٹیچنگ صرف 1499 میں۔ شادی ہو یا اسپیشل اوکیشن، اپنی شخصیت کو دیجیے ایک رائل انداز۔ نیو گرینڈ شو روم، حیات مال بسائڈ منروا سویٹس، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ بھارتی جنتا پارٹی بی جے پی کے رکن پارلیمنٹ اٹالہ راجندر نے بھارت راشٹر سمیتی BRS میں واپسی کی افواہوں کو ختم کرتے ہوئے کہا کہ پارٹی بدلنا اتنا آسان نہیں جتنا کپڑے بدلنا ہے۔ حالیہ واقعات سے خطاب کرتے ہوئے جہاں مبینہ طور پر MP کے پوسٹر کریم نگر میں لگائے گئے تھے جس میں BRS چھوڑنے والے دیگر قائدین کے ساتھ ان کی تصویریں لگائی گئی تھیں، انہوں نے کہا کہ کچھ لوگ ایک بیانیہ کو آگے بڑھانے کی کوشش کر رہے کہ ہم واپس آئیں گے، میں اسے سنجیدگی سے نہیں لیتا۔ انہوں نے شامر پیٹ میں اپنی رہائش گاہ پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا۔ رکن پارلیمنٹ نے کہا کہ انہیں 2008 میں آندھرا پردیش کے اس وقت کے چیف منسٹر YS راجشیکھر ریڈی نے وزارتی عہدے کی پیشکش کی تھی۔ انہوں نے مجھے وزارتی عہدے کی پیشکش کی، مجھ سے کانگریس میں جانے کو کہا، میں نے ایسا نہیں کیا کیونکہ میں تلنگانہ تحریک سے وابستہ تھا۔ تاہم BRS سے ان کے اخراج کے بارے میں بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ 5 سال پہلے KCR نے مجھے باہر نکال دیا، اس وقت تمام میڈیا ان کے کنٹرول میں تھا اور مجھے اپنی وضاحت کرنے کا موقع نہیں تھا۔ ان حالات میں میں نے BJP میں شمولیت اختیار کی۔ انتخابات 2023 سے ٹھیک پہلے جب تملا ناگیشور راؤ اور پونگولیٹی سنواس ریڈی نے کانگریس کے لیے BRS چھوڑا، وہ مجھ سے ملے اور مجھ سے کے چندرشیکھر راؤ KCR کو ہٹانے کے لیے ان کے ساتھ شامل ہونے کو کہا۔ میں وزیر یا نائب وزیر اعلیٰ بن سکتا تھا لیکن میں نہیں گیا، انہوں نے اپنے موجودہ کردار سے وابستگی کا اعادہ کرتے ہوئے کہا۔ تلنگانہ کے وزیر صحت دامودر راج نرسمہا نے جلوی ہاٹ سے فوڈ سیفٹی آگاہی واکیتھون کا آغاز کیا جس میں تقریباً 1000 طلبہ اور نوجوانوں نے شرکت کی۔ واک کا اختتام IMAX کے قریب HMDA گراؤنڈز پر ہوا جہاں صحت، پولیس اور فوڈ سیفٹی محکموں کے سینئر افسران موجود تھے۔ وزیر نے خطاب میں کہا کہ بدلتی طرز زندگی اور تیز شہری ترقی کے باعث پروسیسڈ اور درآمد شدہ خوراک پر انحصار بڑھ گیا ہے جس سے فوڈ سیفٹی کے خدشات بڑھ رہے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ ملاوٹ شدہ اور ناقص خوراک کا استعمال معدے کے مسائل کے ساتھ ساتھ ذیابیطس، ہائی بلڈ پریشر، دل کی بیماری، گردوں کے امراض اور موٹاپے جیسے طویل مدتی مسائل کو جنم دے رہا۔ انہوں نے بتایا کہ ریاست میں تقریباً 1,41,000 فوڈ بزنس ادارے ہیں جن میں سے 80% شہری علاقوں میں ہیں جو تیار شدہ اور پروسیسڈ خوراک کی بڑھتی مانگ کو ظاہر کرتا ہے۔ چیف الیکٹورل آفیسر تلنگانہ سی سدرشن ریڈی نے کہا کہ تلنگانہ میں ووٹر لسٹ پر خصوصی نظرثانی مہم SIR کے آغاز میں 1 ماہ کی تاخیر ہو سکتی ہے کیونکہ حیدرآباد اور میڈچل ملکاجگری میں ماقبل SIR میپنگ کا کام سست رفتار ہے۔
सुदर्शन रेड्डी ने कहा है कि तेलंगाना में अप्रैल के बजाय मई में फहरिस्त राय दहिंदगान पर खुसूसी नजरसानी की जा सकती है। इलेक्शन कमीशन के मिशनरी मगरबी बंगाल, तमिलनाडु और केरला के असेंबली इंतखाबात में मसरूफ है। इसके अलावा मुल्क में मर्दमशुमारी का काम भी जारी है। उन्होंने कहा है कि तेलंगाना में SIR मुहिम के लिए टीचर्स की खिदमत हासिल नहीं की जा रही। हुकूमत के दीगर मुलाजमीन की खिदमत की ली जाएंगी, जबकि दीगर रियासतों में मर्दमशुमारी और SIR का काम टीचर्स अंजाम दे रहे हैं। उन्होंने कहा है कि तेलंगाना में SIR की मुहिम में ताख़ीर का फैसला किया गया है। उन्होंने बताया कि रियासत में माक़ाबिल SIR मैपिंग का काम जारी है। उन्होंने कहा है कि हैदराबाद और मलकाजगिरी में मैपिंग के काम में सुस्त रफ्तारी के लिए बूथ लेवल ऑफिसर्स जिम्मेदार हैं। TPCC के सरकारी तर्जुमान डॉक्टर चरण कौशिक यादव ने BRS के दौरे हुकूमत पर शदीद तनकीद करते हुए कहा है कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल CAG की रिपोर्ट ने सरकारी शोबे की कंपनियों की बदहाली को बेनकाब कर दिया। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट के मुताबिक साबिका हुकूमत में कई सरकारी इदारे शदीद नुकसान का शिकार हुए। खासतौर पर संगारेनी कॉलरीज कंपनी लिमिटेड में तकरीबन 251 करोड़ रुपए अवामी रकम ज़ाय की गई। मजीद ये कि कोयला नकल व हमल के नाम पर सार्फिन से तकरीबन 1078 करोड़ रुपए इजाफी वसूल किए गए। डॉक्टर यादव के मुताबिक कुल 23 सरकारी इदारों में से 9 इदारे दिवालिया हो गए और मजमूई तौर पर तकरीबन 50,930 करोड़ रुपए के नुकसानात का सामना करना पड़ा। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि ये सब कुछ सिर्फ कमीशन हासिल करने के लिए के चंद्रशेखर राव की क़ियादत वाली हुकूमत ने किया। उन्होंने मजीद कहा कि CAG रिपोर्ट रियासत में माली बदइंतजामी की वाज़ेह मिसाल है और अवाम के पैसे के गलत इस्तेमाल को जाहिर करती है, जिस पर मुकम्मल तहकीकात होनी चाहिए। वाटर बोर्ड के मैनेजिंग डायरेक्टर अशोक रेड्डी ने नेकनामपुर में तामीर किए जाने वाले सेवरेज ट्रीटमेंट प्लांट STP के कामों को फौरी तौर पर शुरू करने की हिदायत दी। उन्होंने इब्राहिम चेरू के मकाम का दौरा करते हुए मुतल्लिक़ अफसरान को ज़रूरी इक़दाम तेज़ करने का हुक्म दिया। ये STP अमृत 2.0 स्कीम के तहत बनने वाले 39 मनसूबों में शामिल है। मुआयने के दौरान MD ने हिदायत दी है कि फौरी तौर पर साइल टेस्ट मुकम्मल किया जाए और मलकम चेरू से आने वाले गंदे पानी को नेकनामपुर इब्राहिम चेरू में दाखिल होने से पहले STP के जरिए साफ किया जाए। उन्होंने कहा है कि नेकनामपुर चेरू से इब्राहिम चेरू तक बारिश के पानी के लिए बॉक्स ड्रेन तामीर किया जाए और इसके दोनों जानिब ट्रंक सेवर मेन लाइन बिछाने के मंसूबे को हतमी शक्ल दी जाए। साथ ही मणिकुंडा, लिंको हिल्स और पोपालागुड़ा समेत दीगर इलाकों के ड्रेनेज निज़ाम को इस STP से जोड़ने के लिए मास्टर प्लान तैयार करने की हिदायत दी गई। अशोक रेड्डी ने मजीद कहा कि साफ शुदा पानी को बागवानी और तामीराती कामों में इस्तेमाल करने के लिए STP इहाते में टैंकर फिलिंग स्टेशन कायम किया जाए और मुकामी पार्कों में इस पानी के इस्तेमाल को यकीनी बनाया जाए। संगारेड्डी जिले कलेक्टर प्रवीणिया ने कहा है कि एक सेहतमंद माशरे की तश्कील के लिए तमाम महकमों को बाहमी तालमेल के साथ काम करना होगा और अवाम में सेहत से मुताल्लिक बेदारी पैदा करने के लिए मौसर इक़दाम करने चाहिए। ये बात उन्होंने जिले संगारेड्डी में हेल्थ वीक प्रोग्राम के सिलसिले में मुनक़िदा जिले टास्क फोर्स इजलास की सदारत करते हुए कही। ये इजलास कलेक्टर कैंप ऑफिस में मुनक़िद हुआ, जिसमें मुख्तलिफ महकमों के अफसरान ने शिरकत की। कलेक्टर ने बताया कि अवामी सेहत की बेहतरी और शऊर बेदारी के मकसद से 11 अप्रैल तक हेल्थ वीक मनाया जा रहा। इस दौरान रोजाना मुख्तलिफ मौज़ूआत पर प्रोग्राम मुनक़िद किए जाएंगे। उन्होंने तमाम मुतल्लिक़ा महकमे सेहत, ड्रग्स कंट्रोल, फूड सेफ्टी, ख़वातीन व अतफ़ाल बहबूद, पुलिस और मेडिकल व नर्सिंग कॉलेजों को हिदायत दी कि वो मुकम्मल हम आहंगी के साथ प्रोग्रामों को कामयाब बनाएं और अवाम की ज़्यादा से ज़्यादा शिरकत को यकीनी बनाएं। तेलंगाना के जिले संगारेड्डी के जहीराबाद इलाके में एक इंतहाई दिल दहला देने वाला वाक़या पेश आया, जहां एक शख्स ने अपनी बीवी को मुबैना तौर पर गैर अज़दवाजी ताल्लुकात के शुबा में कत्ल कर दिया। ये वाक़या उस वक्त पेश आया जब पुलिस भी मौके पर मौजूद थी, जिसने इस मामले को मजीद सनसनीखेज बना दिया। पुलिस के मुताबिक 29 साल कविता, जो जहीराबाद की रिहायशी थी, अपने मुबैना आशिक पवन रेड्डी के साथ फरार हो गई थी। इसके बाद उसके शौहर सुधा रेड्डी ने पुलिस में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करवाई, जिस पर मुकदमा
मुकदमा दर्ज किया गया। तहकीकात के दौरान पुलिस ने कविता को जड़चल्ला में तलाश किया और उसे वापस जहीराबाद लाने के लिए शौहर के साथ रवाना हुई। वापसी के दौरान नंदीकोंडी के करीब सुधा रेड्डी ने गाड़ी के अंदर ही अपनी बीवी पर हमला करते हुए उसके गले पर चाकू से वार किया। शदीद जख्मी होने के बाइस कविता को अस्पताल मुंतकिल करने से पहले ही उसकी मौत हो गई। पुलिस की मौजूदगी में होने वाले इस कत्ल ने मुकामी सतह पर जबरदस्त सनसनी फैला दी। पुलिस ने मुलजिम सुधा रेड्डी को हिरासत में ले लिया और मुकदमा दर्ज करके मजीद तहकीकात शुरू कर दी। रियासती हुकूमत विप आदि श्रीनिवास ने बीआरएस और बीजेपी पार्टियों पर संगीन इल्जामात आयद करते हुए कहा है कि दोनों जमातें खुफिया तौर पर आपस में मिले हुए हैं। उन्होंने दावा किया कि हाल ही में होने वाले 2 म्यूनिसिपल चेयरमैन इंतखाबात के नताइज इस बात का वाज़ेह सबूत हैं। आदि श्रीनिवास के मुताबिक इन इंतखाबात में दोनों पार्टियों ने चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के ओहदे आपस में तकसीम कर लिए। खासतौर पर इब्राहीमपट्टनम में दोनों जमातों के दरमियान ओहदों की बंदर बांट खुलकर सामने आई। उन्होंने मजीद कहा है कि खानापुर में होने वाले म्यूनिसिपल चेयरमैन इंतखाबात में भी बीआरएस और बीजेपी की दोस्ती एक बार फिर अयां हो गई, जहां बीजेपी को चेयरमैन का ओहदा दिया गया जबकि बीआरएस ने वाइस चेयरमैन की निशस्त अपने पास रखी। आदि श्रीनिवास ने बीजेपी के सदर रामचंद्र राव को निशाना बनाते हुए कहा है कि वो बार बार ये दावा करते हैं कि उनकी किसी से कोई मुफाहिमत नहीं, लेकिन खानापुर और इब्राहीमपट्टनम के वाकयात इसके बरअक्स हैं। लोकसभा में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ और कांग्रेस के सीनियर रहनुमा राहुल गांधी ने आसाम के कमलपुर में एक इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए वज़ीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा पर बराह रास्त और सख्त हमला किया। उन्होंने इल्जाम लगाया कि रियासत में बदउनवानी उरूज पर है और अवामी जमीनों को मुनज़्ज़म अंदाज में बड़े कॉरपोरेट इदारों के हवाले किया जा रहा, जिससे आम लोगों के हुकूक मुतासिर हो रहे। राहुल गांधी ने कहा है कि आसाम की सियासत को नफरत और तकसीम की तरफ ढकेला जा रहा, जबकि इस रियासत की असल पहचान इत्तेहाद, भाईचारा और सकाफती हम आहंगी रही है। उन्होंने जुबेन गर्ग, गोपीनाथ बोरोदोलोई, भूपेन हजारिका और तरुण गोगोई जैसी शख्सियात का हवाला देते हुए कहा कि इन अहम शख्सियात ने हमेशा लोगों को जोड़ने का काम किया, ना कि उन्हें तकसीम करने का। उन्होंने वज़ीर आला पर इल्जाम आयद किया कि वो रियासती वसाइल को अवामी मुफाद के बजाय अपने करीबी हलकों के लिए फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे। आलमी सरगर्मियों पर नजर रखने वाले मूडीज रेटिंग्स ने हिंदुस्तान की इक्तिसादी शरह तरक्की की रफ्तार कम करके नए माली साल 2026-27 के लिए उसे 6% कर दिया, जिसके लिए पहले 6.8% की पेशगोई की गई थी। आलमी रेटिंग एजेंसी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि मगरबी एशिया में जारी तनाज़ा हिंदुस्तान की इक्तिसादी तरक्की को मुतासर करेगा और अफरात ज़र के खतरात में इजाफा होगा। रिपोर्ट के मुताबिक LPG की सप्लाई में रुकावट और ईंधन की बढ़ती हुई कीमतों का घरेलू असर पड़ सकता है। इससे नकल व हमल के अखराजात बढ़ेंगे और खुराक की अफरात ज़र पर दबाव पड़ेगा, क्योंकि हिंदुस्तान खाद की दरआमद पर इन्हिसार करता है। मगरबी एशिया हिंदुस्तान के खाम तेल का तकरीबन 55% और LPG का 90% से ज्यादा दरआमद करता है। मोडीज ने अपनी ताज़ा रिपोर्ट में नए माली साल में अफरात ज़र की औसतन शरह 4.8% रहने का अंदाजा लगाया, जो कि 2025-26 के 2.4% से ज्यादा। एजेंसी के मुताबिक जोग्राफियाई सियासी खतरात की वजह से अफरात ज़र का दबाव बढ़ सकता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि बढ़ती हुई महंगाई और जमूद का शिकार इक्तिसादी तरक्की के दरमियान पॉलिसी सूद की शरह को मुस्तहकम रखा जा सकता है या बतदरीज बढ़ाया जा सकता है। मगरबी एशिया में कशीदगी के हिंदुस्तान पर असरात होंगे, महंगाई बढ़ेगी और घटेगी GDP की शरह नमू। मौजूदा हालात को पेश नजर रखते हुए आलमी रेटिंग एजेंसी ने कहा है कि निजी खपत में कमी, सनती सरगर्मियों में सुस्त रवि और ज्यादा लागत की वजह से सरमायाकारी की रफ्तार सुस्त पड़ सकती है, जिससे शरह नमू मुतासिर होगी। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चुंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు.
బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగు చేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా అఫైర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజాఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। माँ फोन नंबर 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।